ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੀ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਸਪਾਲ ਜਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਇਨ ਦ ਲੇਟ ਸ਼ੋ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੀ ਲੇਟ ਸ਼ੋ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ I bring in intellectual guests को different ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ which they have done a qualification degree ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ guests. You remember last time we couldn't do the show, but week before I had a lady called Lavanya. She done a digital marketing. This is something totally different. ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੀ awareness ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ. That's why I bring those guests ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ awareness ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ in case you want to pick the profession ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ yes I saw that person on Akal channel and this is what we're talking about. ਹਰ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ they're most difficult to get hold of because they're busy life, they are professionals in different field ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੀ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਸਿਟ ਬੈਕ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਮਿਸ ਸਨਾ ਕਾਦਰ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਰਾਈਟ? Kardar. It's Kardar. Kardar, eh? Yeah. Okay, Kardar. I've never heard that name before, but unusually. Kardar. ये Persian word है और मेरे forefathers को as a state title मिला था रंजीत सिंह, the governor of Punjab से। Okay, really? At that time, क्योंकि वो उनके पास दो बहुत main portfolios थे, so he was working right under Ranjit Singh. Raja Ranjit Singh. I must say that, do you mind if I call you Sana? Will be easier for me. Yes. Sana comes from a coffee influential family, Dalal, because I believe you had an uncle. Was your uncle who was? My granduncle. No, the one who was the captain, cricketer. Yes, he was my granduncle. अच्छा, really? मेरे दादा के भाई थे। दादा के भाई थे. Okay. What he was He was the first Pakistani cricket captain, and I think कि only cricketer हैं जिन्होंने इंडिया और अनडिवाइडेड इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से खेला है, और दोनों के कैप्टन थे। Really, going back then? Yes. और उन्होंने पाकिस्तान को इंग्लैंड में इंग्लैंड से जिताकर टेस्ट क्रिकेट स्टेटस दिलवाया था 1950s में। So nice when you hear that family has done so well in life, है ना? Sana, maybe let's start with, बहुत important है क्या होता है जब whenever you're young, like 14, 15, 16, some people are very much hooked on their life. So बड़ी छेती वो डिसाइड कर लेते हैं मेरी लाइफ पे क्या बनना है, for whatever reason. फैमिली की बैकग्राउंड होती है, कोई फैमिली का प्रोफेशन होता है, they want to follow the same one. A lot of people like these days don't follow what their parents do it. Anyway, they want to do something different. So let's start with something. आपका जन्म कहाँ पे हुआ? And basically idea hota hai to find out at what age, whatever you done now, when did you decide to do it? घर से कोई backing थी family की, रिश्तेदारों की, something like that. So where were you born actually? मैं यहाँ पर लंदन में पैदा हुई थी। अच्छा, लंदन में पैदा? जी, लेकिन जब मैं 2 साल की थी तो मेरे पेरेंट्स वापस पाकिस्तान मूव कर गए थे लाहौर में, और हम लोग मैं और मेरी बहन बहुत ही लिबरल एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, और पेरेंट्स की तरफ से कभी कोई फोर्स नहीं था कि आपने ये करना है वो करना है। मेरे फादर हमेशा ये कहते थे कि जो आपका दिल करता है वो करो, क्योंकि अगर मैं फोर्स करूँगा कि आप डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, हम तो ऐसे होता है ना हमारे एशियन फैमिली में। हाँ जी, तो अगर मैं फोर्स करूँगा तो फिर आपका पूरा दिल नहीं लगेगा उसमें और आप इंजॉय नहीं कर सकोगे। जो काम आप इंजॉय करके करोगे वो आप पूरे दिल के साथ और लगन के साथ करोगे। तो इसलिए हमें पूरा फ्रीडम था कि आप चूज़ करो, ये पसंद नहीं है तो कुछ और चूज़ कर लो जो करना है। मुझे डांस का बहुत शौक़ था। मैं आई थिंक 4-5 इयर्स की थी, तब से मुझे डांस का बहुत शौक़ था, तो मुझे प्रोफेशनल कथक ट्रेनिंग कराई थी। मेरी बहन वो स्क्वॉश खेलती थी, तो फिर उसके साथ मुझे भी शौक़ हो गया और हम दोनों पाकिस्तान के लिए स्क्वॉश खेलने लग गए। That's nice. Yeah. फिर आई हैड अ नी इंजरी जिसकी वजह से मैंने स्क्वॉश छोड़ दी थी, और मेरी स्टडीज़ भी काफ़ी टफ़ हो गई थी।
उस टाइम पे मैं चाहती थी कि मैं एयर फोर्स पायलट बनूं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई फ़ीमेल एयर फोर्स पायलट नहीं थी उस टाइम तक, और मैं पहली एयर फोर्स पायलट बनना चाहती थी. पर मैं एक दिन टीचर के पास गई और टीचर ने बोला कि आपको फ़िज़िक्स पढ़नी पड़ेगी पायलट बनने के लिए. You didn't like that? I could not do physics, maths and physics especially. But why didn't you have a go? Try क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि फिर मेरी नी इंजरी की वजह से भी I would never have been able to do the training. And then फिर external family से काफ़ी प्रेशर था कि डॉक्टर बनना चाहिए, पर मेरे फादर ने हमेशा यही कहा कि आपका जो दिल करता है आप वो करो. थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे फादर एक जर्नलिस्ट थे, तो मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थी उनसे. तो उनके किसी दोस्त के साथ में स्पोर्ट्स जर्नलिज़म के लिए थोड़ा सा उनको शैडो किया और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स इवेंट भी कवर किए. और उस टाइम पे मैं 13 इयर्स की थी. फिर उसके बाद जब मैंने ओ लेवल्स कंप्लीट कर लिया, उस टाइम पे इतनी चॉइस नहीं थी ओ लेवल्स में, विच इज़ GCSE इक्विवेलेंट, कि पाकिस्तान में क्या यू कैन चूज़ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. सो इट वाज आइदर एडिशनल मैथ्स और बायोलॉजी, और मैथ्स मुझे वैसे ही नॉर्मल मैथ्स से मेरी जान जाती थी, तो एडिशनल मैथ्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी. तो इसलिए फिर मैंने बायोलॉजी चूज़ की. पर मेरा डॉक्टर बनने का कोई नहीं था इरादा नहीं था, है? नहीं, क्योंकि वो एक प्रेशर बन गया था कि ओ डॉक्टर बनना है, वो एक्सटर्नल फैमिली से. पर फिर मैंने जब रिसर्च की तो एक ऑप्शन थी कि अगर मैं बायोमेडिकल साइंस पढ़ लूँ तो मैं साइंटिफिक जर्नलिस्ट बन सकती हूँ. How did you have that idea कि biomedical? That was the closest to doctor. It's and again उसमें research थी, आप कुछ नया कर सकते हो, you're not confided to what you have, by the book. लेकिन आपके पास सब्जेक्ट थे ये अच्छा वो थे, है? वो थे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स थोड़े बहुत पढ़नी पड़ी, पर वो इतनी ज़रूरी नहीं थी. और फिर ए लेवल्स मैंने अपना इधर 6th फॉर्म UK से किया, तो यहाँ पर ज़्यादा चॉइसेस थी. This is at what age? मैं sorry, it's always not very polite को लेडी को पूछो उम्र के बाद भी every time. लेकिन मेरा आइडिया क्या होता है ना कि मैं पहले जो शुरुआत में बोल के आता हूँ कि जब ये शो स्टार्ट किया था कि some children are really hooked with their life. They know what they want to do it. तो मेरी जैसे तो कितने साल बर्बाद हो जाती है सोचते, क्योंकि there are half a dozen things I want to do. जैसे हमने बोला मैंने पायलट बनना, मैंने भी बनना था, तो मेरे पास PPL है, लेकिन वो करके मैंने छोड़ दिया. तो कभी दूसरे दिन मैं दूसरी बात कहता था अम्मी को, मैं ये करना चाहता हूँ, तो मेरे बाप को जाके कहती थी अभी उसने ये करना, तो बोलती वो तो पागल है, अभी तू भी उसके पीछे लग जाती है. तो जो माइंड इतना वाइल्ड होता है, आपको इतना कि मैं ये भी करना, मैंने ये भी करना, तो एंड के ऊपर वो आप नहीं कर पाते जो आप चाहते हो. एटलीस्ट आपने डिसाइड किया एट अ वेरी यंग एज कि बायोमेडिकल आपने करना है. जी, तो आई थिंक आई वाज 13-14 जस्ट अराउंड जब मैं GCSE में. But that's a very young age to know something about that so medical profession, Yes. आई थिंक उस टाइम पे मुझे ये था कि डॉक्टर नहीं, पर उसके क्लोजेस्ट जो भी है वो मैं बनना चाहूँगी, ताकि एक तो क्योंकि मेरे मॉड्यूल्स जो थे वो साइंस में थे और मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थी उस टाइम पे. सो इसलिए मैंने ये चूज़ किया था कि मैं बायोमेडिकल साइंटिस्ट बन जाऊँगी. फैमिली में कोई था? नहीं. तो हाउ डिड फैमिली फील अबाउट इट? My family was very happy. My dad was very supportive. उन्होंने कहा कि मुझे जर्नलिज्म का भी एडमिशन मिल गया था ओ लेवल्स के बाद विदाउट डूइंग माय ए लेवल्स हार्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में. पर उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि जर्नलिज्म मैं किसी भी टाइम पे कर सकती हूँ, पर अगर मैंने साइंस डिग्री अभी नहीं की तो मैं भूल जाऊँगी जो मैंने स्कूल में पढ़ा है, तो इसलिए पहले साइंस डिग्री ख़त्म कर लूँ और फिर मैं कुछ और अगर मैंने करना हुआ जर्नलिज्म में तो वो मैं कर सकती हूँ. How long since you done this biomedical scientist? अब कामयाब हो गए उसके अंदर? Have you got any डिग्री वगैरह कुछ है उसके अंदर? जी. अच्छा, really? जी, तो अभी मैं बायोमेडिकल साइंटिस्ट एज अ बायोमेडिकल साइंटिस्ट काम कर रही हूँ और कैंसर में रिसर्च कर रही हूँ. पर मेरा अच्छा कैंसर के अंदर भी है? जी, उसमें ब्रेस्ट कैंसर और रीनल कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ.
इसके अलावा अभी क्योंकि मैं और थोड़ा और कैंसर में तो बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं और बहुत सब सारी फंडिंग भी है, तो इसके अलावा मैं थोड़ा बहुत दूसरी साइड पे भी वेंचर करना चाह रही हूँ. एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन है, उसके ऊपर रिसर्च करना चाह रही हूँ. क्या चीज़ है ये? एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो 1 in 10 वेमेन को होता है, और उसमें जो यूट्राइन लाइनिंग है वो यूट्रस के बाहर दूसरे ऑर्गन्स पे ग्रो करना शुरू कर जाती है, और इसकी वजह से एडहेशंस और लीजन्स बन जाती हैं, स्कार टिश्यूज़ बन जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पेन कॉज करते हैं. ये औरतों को है ना, लेकिन कौन सी एज पे ये हो सकती है औरत को? ये किसी भी एज में हो सकती है. जब से आपकी मेंस्ट्रुएशन लाइफ स्टार्ट होती है तब से लेकर अभी तक रिसर्च आई है कि मेनोपॉजल विमेन तक होती है. लेकिन क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट ग्रुप्स में भी हूँ जहाँ पर विमेन एज 65 still complain कि although they have been menopausal or they have gone through menopause already, but they still suffer the consequences until today. लेकिन ये पर्टिकुलर ये जो डिजीज़ है एंडोमेट्रियोसिस, आपने इसमें पर्टिकुलर क्यों इंटरेस्ट लिया? क्योंकि 2015 में मुझे भी डायग्नोज हुआ था. Really? और इनिशियली मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ये क्या कंडीशन है. मैं डॉक्टर के कहने के हिसाब से चल रही थी, पर फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ी बहुत रिसर्च करनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब डॉक्टर के पास जाऊं तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ सकूं उनसे. थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि डॉक्टर्स, आपको पता हो कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं. एंड बिकॉज मैं रिसर्चर हूँ तो वो ऑटोमेटिकली ही आ गया कि मुझे इसके ऊपर पढ़ना है. और जब मैं रिसर्च कर रही थी अपनी नॉलेज के लिए, तब मुझे पता चला कि इसमें तो इतनी रिसर्च है ही नहीं क्योंकि फंडिंग बहुत कम है. और रिसेंटली जिन एमपी की के साथ इंसिडेंट हुआ था, वो पार्लियामेंट में एक्चुअली एंडोमेट्रियोसिस के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहे थे और इसकी रिकग्निशन के लिए बात कर रहे थे, जिसकी वजह से मीडिया में काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में अवेयरनेस और कवरेज आई थी. लेकिन जैसे आपने बोला सर ना कि दिस इज एटलीस्ट 1 in every 10 women suffer from this, and yet there's so much little knowledge about it or awareness about it. ऐसे क्यों है? I think that's a lot of people. 1 in 10. Yes, that's a lot of people. A lot of people, huh? Yeah, so I think उसका हम इस पे भी ब्लेम कर सकते हैं कि अगर विमेन रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो उसको थोड़ा सा लोग समझते हैं कि एग्जैजरेट कर रहे हैं. और एक सेकेंडली एक टैबू है, बहुत सारे लोगों को ये कहा जाता है कि ओ ये तो सिर्फ पीरियड पेन है, तुम अकेली तो नहीं हो जिसको ये मसला हो रहा है. पहले तो लोग यही कहेंगे ना, स्पेशली मदर्स वगैरह होती है, एजुकेशन की कमी होने की वजह से दिस इज द बेस्ट क्या आंसर होता है कि तेरे को ये होगा क्योंकि दिस इज नॉर्मल विद और औरतों को होता है कि तुम खाना नहीं सही खाती. कुछ लोग तो मोबाइल के ऊपर भी ब्लेम कर देते हैं कि मोबाइल में हर वक्त लगे रहते हो तो इसकी वजह से कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो इसकी वजह से हो गया है. लेकिन इसमें किसी को कुछ अभी रिसर्च इतनी नहीं है और हमें ये पता नहीं है कि ये क्यों होता है, हेरिडिटरी है, जेनेटिकल है या किस वजह से हो रहा है. तो इट अफेक्ट्स अ लॉट ऑफ वुमेन, पर टैबू है विमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में बात करना बहुत सी सोसाइटीज़ में. आई थिंक मैं अब क्योंकि मैं ओपनली बात करती हूँ तो आई हैव सीन मेन एंड विमेन बोथ एंड कि वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाते हैं कि बात नहीं करनी इसके बारे में. लाइक मेरे सोशल मीडिया पे मैं बहुत ओपनली, और मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ इसके बारे में, उसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. और मेरे इनबॉक्स में सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं क्योंकि उनको समटाइम्स दे जस्ट नीड समबडी टू अंडरस्टैंड देम कि मुझे भी पेन है, मेरी पेन नकली नहीं है या मैं झूठ नहीं बोल रही. क्योंकि अगर आप पाकिस्तान इंडिया में जाकर देखें तो आधे से ज़्यादा लोगों को तो ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता क्योंकि वो मैरिड नहीं है. आपको कुछ भी गायनेकोलॉजिकल रीज़न के लिए आपको मैरिड होना ज़रूरी है. हाफ द टाइम बिकॉज
दे थिंक कि वर्जिनिटी इज़ एन इशू, और अगर आप वैसे भी किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो कई बार आपके रिश्तेदार ही पूछने लग जाते हैं कि ये क्यों गई है गायनेकोलॉजी के पास, और कुछ इशू तो नहीं है, कुछ गलत हो रहा है। तो फिर इसकी डर से कई बार तो अगर पेरेंट्स को पता भी हो तो वो बताते नहीं हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं लेकर जाते, या कई बार बच्चे खुद डर के अपने पेरेंट्स को नहीं बताते कि कहीं पेरेंट्स कुछ गलत ना समझ लें, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप की फैमिली से वो आ रहे हैं। But Salah, do you feel, especially, अभी I will not talk much about India और पाकिस्तान क्योंकि वहाँ के हालात तो डिफरेंट है ना, अगर हम वेस्टर्न कंट्री की बात करें, यहाँ पे थोड़ा बहुत है लेकिन बहुत कम है इस तरह की बातें, बड़ी प्राइवेसी है लाइफ के अंदर, आप क्या करते हो आपके नेबर को भी नहीं पता होता है। दिस इज द रीजन ਅਸੀਂ ਅੱਦਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਸਿਟ ਐਟ ਹੋਮ ਐਂਡ ਥਿੰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ कि मे बी दिस इज लेली की प्रॉब्लम है, ये तो एवरी मंथ को होती है तो इसलिए वजह से आपका पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, कोई समथिंग डिफरेंट आपको फील होता है ना, दिस इज समथिंग यू नीड टू टॉक अबाउट टू समबडी इन द फैमिली। आई थिंक कोई भी पेन जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते या आपको किसी भी टाइप से क्रिपल कर रही है, जहाँ पर आप अपने डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, वो सीरियस है। और उसके लिए आपको यू नीड टू सीक सपोर्ट एंड हेल्प। लेकिन चला अगर आप बात खुलकर नहीं करोगे फॉर वट एवर रीजन, मेरे मेंस के बहुत ओपनली नहीं बात कर सकते हैं कई दफ़ा, तो कितने साल तो ऐसे ज़ाया हो जाते हैं, बीमारी ख़राब हो सकती है, दैट गोज वर्स्ट। द अर्ली स्टेज द बेटर इट इज़। ना कि उधर मैं बात करूँगा बाद में, बड़े मेरे पास इस क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, तो जैसे आपने बोला क्योंकि औरतों को ये बीमारी है, इट्स सो अनफेयर कि अब तक इतनी अवेयरनेस इसकी नहीं है, इतना रिसर्च नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से मैं जो प्रोग्राम लेके आता हूँ ना, कोई नवा ये बीमारी कोई नहीं तो नहीं है, तो बड़े सालों से बड़ी पुरानी चीज़ है, उसकी अवेयरनेस अभी स्टार्ट हो रही है, लोगों को लगता है कि कोई नई बीमारी है जी। ये बीमारी जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, आई एम श्योर इट्स वे बिफोर दैट एज वेल, बट क्वीन विक्टोरिया को भी ये प्रॉब्लम थी, इसीलिए उनके इतने ज़्यादा बच्चे थे क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट होती थी उस टाइम पे उनको पीरियड्स नहीं होते थे, और जब आपके पीरियड्स नहीं होते तब इसकी पेन थोड़ी कम होती है। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है बहुत सारे डॉक्टर्स में भी और बहुत सारे लोगों में भी कि अगर आप के बच्चे हो जाएं तो उसके बाद ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। पर अगर आप हिस्टोरिकली क्वीन विक्टोरिया को ही देख लें तो जब भी उनकी बच्चे हो जाते थे उसके बाद उनको फिर से वही पेन शुरू हो जाती थी। तो हम औरतों को ये कहते हैं कि आप शादी कर लो, शादी के बाद मसला हल हो जाएगा, बच्चे पैदा कर लो उसके बाद मसला हल हो जाएगा। पर आई थिंक मेरे ख्याल में जो नोन फैक्ट तो नहीं ना इसका, नो इट्स नॉट अ नोन फैक्ट, और कोई एविडेंस ही नहीं है कि बच्चे पैदा करने के बाद बीमारी ख़त्म हो जाती है। मेरे ख्याल में, ये मेरा ओपिनियन है कि बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो एक औरत इतनी बिज़ी हो जाती है उनके साथ कि फिर वो अपनी पेन भूल के उनके पीछे लग जाती है, तो वो फिर एड्रेस ही नहीं करती। और अगर वो करे कभी एड्रेस तो फिर उसको अनग्रेटफुल और इस टाइप के टैग्स दे दिए जाते हैं सोसाइटी से। चलो ये आपने थोड़ा बहुत तो जवाब दिया, फिर भी पूछ लेता हूँ, इज देयर एनी नॉन कॉजेज के किसकी वजह से हो सकता है? ऐसे तो नहीं कि बैठे बैठाए हो जाता है, इज इट अ डाइट, इज इट अ लाइफस्टाइल, इज इट समथिंग यू नो डोंट राइट, किस तरह के हाउ डज इट, उसका कॉज क्या हो सकता है? तो अगेन अभी इतनी रिसर्च नहीं है, देयर आर नो जेनेटिक और हेरिडिटरी लिंक्स टू इट, लेकिन इट कुड बी देयर, पर वो स्ट्रेस की वजह से यू नो लाइक अगर आपको किसी भी किस्म का स्ट्रेस है तो इट कैन एग्रीवेट द पेन बिकॉज हार्मोनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ आर लिंक्ड टुगेदर। सो आई थिंक कि उसकी वजह से हो सकता है। पर कई बार यू नो क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस की डिफरेंट स्टेजेस हैं, कई बार जो लोग आई बिलीव उसके 4 स्टेजेस हैं ना, 4 स्टेजेस। तो सुपरफिशियल पेरिटोनियल है क्योंकि वो बिल्कुल छोटे छोटे स्कार्स होते हैं, वो पहली स्टेज है। एंडोमेट्रियोमास हैं जिसमें सिस्ट्स होती हैं पर वो इतनी ज़्यादा डीप इनफिल्ट्रेटेड नहीं होती। और फिर थर्ड स्टेज है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स साथ अटैच होने लग जाते हैं और सिस्ट्स भी होती हैं। एंड थर्ड जो है जो आपके काफ़ी ज़्यादा पेल्विक ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड हैं और एब्डोमिनल वॉल्स भी इन्वॉल्व्ड हैं। तो यू नो
अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल कुछ किसी को स्टेज 1 एंडोमेट्रियोसिस है लेकिन उनको बहुत ज़्यादा दर्द है, और किसी को स्टेज 4 एंडोमेट्रियोसिस है पर उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो इस तरह भी होता है कि वो, लेकिन ऐसे नहीं जो सिंपल लफ्ज़ में बोला गया कि मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर होती है, तो जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, कैन इट हैपन टू सिवियरिटी इमीडिएटली कि इट डजंट गो विद द माइल्डर वन टू द No, it can be any stage at any time. Any stage at any so time. it's not, it doesn't like cancer progresses from stage 1 to stage 2, 3 and 4, but endometriosis can happen any time and be at any stage. Like उसमें ये नहीं है कि आपको पहले छोटे scars होंगे और फिर जाकर वो काफ़ी like severely आपको affect करेगा या बहुत ज़्यादा organs को involve करेगा. I think ये it's not possible. Like it might happen, it might not happen, क्योंकि इसका diagnosis भी again as I said कि आप इतने slow as in घर से भी जब आप डॉक्टर के पास जाने में आप इतना टाइम ले लेते हैं, तो obviously you know, even if you have stage 1 you might have skipped that time to get it diagnosed at stage 1. वही ना, अगर वो मिनिमल है, माइल्ड है एंड इट्स अ मॉडरेट, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, सिम्टम्स, उसके सिम्टम है कोई? जी, सिम्टम्स हैं कि बहुत पेनफुल पीरियड्स होते हैं. एक मिथ ये है कि सिर्फ पेनफुल पीरियड्स होते हैं, पर ऐसा नहीं है. आपको पूरे साइकिल में, पूरे मंथ में किसी टाइम पे भी बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है. हर किसी के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं क्योंकि हर किसी की पीरियड साइकिल डिफरेंट होती है. किसी लोगों को पूरे मंथ में बहुत ज़्यादा पेन रहती है और कुछ लोगों को सिर्फ ओव्यूलेशन या फिर पीरियड के टाइम पे पेन होती है. ये सबसे मेन सिम्टम है पेन. ऐसी पेन कि आपसे उठा भी ना जाए और चला भी ना जाए, आपको सपोर्ट चाहिए हो मेन काम करने के लिए रोज़मर्रा के. और इसके अलावा ब्लोटिंग, जिसमें आपका पेट फूल जाता है. सिर्फ पानी पीने से आप ऐसे लगता है कि आप 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हो, और उसकी वजह से और पेन होती है. ब्रेथलेसनेस होती है, वॉमिटिंग एंड नोज़िया. कई बार सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी से भी मैच करते हैं. पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ब्लीडिंग, हैवी इरेगुलर ब्लीडिंग. तो ये कुछ मेजर सिम्टम्स हैं. कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ब्लैडर इन कंट्रोल. तो these are some symptoms, but obviously they vary from people to person. लेकिन अभी जैसे आप एक्सप्लेन करें, मुझे यही दिमाग में आ रहा है कि अगर आपको बड़ा माइल्ड पहले स्टार्ट हुआ है, ये जो सिम्टम है आप पहुंच जाते हैं. इसके अलावा एब्डोमिनल एब्डोमिनल वॉल एंडोमेट्रियोसिस है. ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिनकी सर्जरीज पहले हो गई हों, तो वो लाइक सी सेक्शन अगर किसी को का हुआ हो, तो वो जो स्कार होता है उसके बीच में एंडोमेट्रियोसिस टिश्यू ग्रो करने लग जाता है. तो वो आई थिंक इतना कॉमन नहीं है. वो उन लोगों को ज़्यादा वो रिस्क पे हैं जिनकी पहले सर्जरीज हो गई नहीं. यू नो, मैं अपने आप ਨੂੰ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰਦਾ. ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਕਰੋ, डोंट ऑलवेज टेक प्रेशर को टेंशन ना लवो. बट देन ऑन द अदर हैंड अगर आप डिले करते हो तो उसका तो नुकसान ही होता है ना. सो इट्स कॉन्ट्राडिक्टिंग माय सेल्फ कि मुझे लगता है अगर आपको कुछ बॉडी के इस तरह की चीज़ें, आपकी बॉडी है, आप उसको समझते अच्छी तरह से. अगर आपको कुछ भी होता है ना, चलो आपको पता है कि दिस इज समथिंग अनयूजुअल, मुझे ऐसे पहले नहीं हुआ है जी, पहले ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, चलो मुझे इस तरह की मैं सफ़र करती हूँ. लेकिन समथिंग टोटली डिफरेंट होता है तो अपनी बॉडी को पता लग जाता है. दैट इज़ द टाइम यू शुड नॉट वेस्ट टाइम. यस. सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो 2015 में मुझे सितंबर में बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड स्टार्ट हो गए थे, और एक्चुअली पीरियड ख़त्म होने के बाद मेरी पेन ख़त्म नहीं हो रही थी. तो मैंने 1 मंथ वेट किया. But that is unusual, ना? It was unusual because you know, मैं स्क्वॉश खेलती थी अपने पीरियड के फर्स्ट डे पे और मुझे कुछ भी नहीं होता था. I never felt pain. तो क्योंकि वो काफ़ी अनयूजुअल था, मैंने सोचा शायद इस बार मुझे कोई स्ट्रेस हुआ है या मेरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है तो इसकी वजह से हुआ है. बट देन जब सेकेंड मंथ भी वही मसला हुआ तो मैं फ़ौरन अपने जीपी के पास गई और उनसे कहा कि यू नो दिस इज़ नॉट राइट, और मुझे मंथ के बीच में भी काफ़ी पेन हो रही है. चलो सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, टाइम बड़ी फास्ट जा रहा है. हम जारी रखेंगे, थोड़ी ब्रेक लेंगे.
ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਨਵੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬੜਾ ਓਪਨਲੀ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਐਂਡ ਵੀਲ ਬੀ ਬੈਕ ਇਨ ਅ ਮਿੰਟ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੈਮਿਲੀ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਨਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ क्या बात बोलूँ कि इट्स सच अ प्रोफेशनल जो आप रिसर्च कर रहे हो कितने लोगों का अभी पहले तो देयर इज नो नोन ट्रीटमेंट फॉर दैट इज इट नहीं ट्रीटमेंट कोई नहीं है पर मैनेज किए जा सकते हैं सिम्टम्स मैनेज किए जा सकते हैं उसके लिए डिफरेंट हार्मोनल ट्रीटमेंट्स हैं पर मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से दूसरी मसले शुरू हो जाते हैं लाइक अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह पे जाते हैं तो मेंटल हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं उसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं या यू नो और काफ़ी ज़्यादा मैनेज करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए ट्रीटमेंट्स हैं पर उसको कम्प्लीटली क्योर करने के लिए कुछ नहीं है कि अगर आप ये ट्रीटमेंट करा लोगे तो आप डेफिनेटली क्योर हो जाओगे बट द सिम्पटम्स कैन बी मैनेज्ड दे कैन बी मैनेज्ड पर कई बार वो बेसिकली होता ये कि आप यहाँ पर आपको नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जब जाते हैं तो नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट में फ़र्क है एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट जो है वो स्कार टिश्यू और एंडोमेट्रियोसिस टिश्यू के बीच में फ़र्क बता सकते हैं पर एक नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बता सकते लेकिन अगेन रिसोर्सेज कम होने की वजह से एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट बहुत कम है तो पहले गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब जाते हैं तो आई थिंक वो और उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है आपको एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करने में तो आई थिंक दैट्स वेयर यू नो द प्रॉब्लम इज एज वेल अभी आई थिंक हमने काफ़ी वी टॉक्ड अबाउट इट व्हाट आई वांट टू नो इज मोर अभी ये कितने साल का कोर्स है जो आपने किया हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू डू इट सो अबाउट 3 years 3 years yeah yes लेकिन अभी आगे मैं रिसर्च कर रही हूँ तो अभी मैंने PhD में भी एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड मैं सोच रही हूँ कि करूँ पर बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा ब्रेक आ गया था और मेरी ख़ुद की हेल्थ भी काफ़ी अफेक्टेड थी जिसकी वजह से मैं लैब वर्क नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी ख़ुद की 3 सर्जरी एक सर्जरी इस साल होनी है एक पिछले साल हुई थी और एक 2016 में हुई थी और मेरी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी एज़ कम्पेयर टू फ्रॉम माई फर्स्ट डायग्नोसिस तो जिसकी वजह से आई हैड टू टेक अ बिट ऑफ ब्रेक तो अभी आई एम बैक इन द फील्ड एंड आई एम ट्राइंग टू head towards the right direction. अच्छा biomedical scientist this is what you are now yeah उसके अंदर biomedical it's an open field kind of thing जी yeah please tell me correct me if I'm wrong and then you can pick a particular कोई बीमारी तो उस पे स्पेशलाइज कर सकते हैं like the way you done it now yes yeah वो क्योंकि आप सफ़र करते हैं इसकी वजह से आपने उस पे स्पेशलाइज किया जी अभी you know you tell me कि आप पहले बोलो जब भी लोग कोई भी पिक करे ये प्रोफेशन biomedical scientist बनना हो what do they need to do what kind of subject would they need so A levels में अगर आप GCSE और A levels करते हैं तो उसमें साइंस सब्जेक्ट्स हों बायो केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स एंड मैथ्स दे हेल्प यू गेट इनटू बायोमेडिकल साइंस तो आई थिंक उसमें डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं क्योंकि डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की for biology, chemistry and maths are the compulsory modules in A levels to get into biomedical science. और उसके बाद अगर आप चाहो तो like for example अमेरिका में इस तरह होता है कि आपको पहले एक डिग्री करनी पड़ती है फिर आप डॉक्टर बनते हैं तो यहाँ पर भी जिन लोगों का डायरेक्टली मेडिसिन में एडमिशन नहीं होता वो पहले बायोमेडिकल साइंस पढ़ लेते हैं और फिर मेडिकल में भी एडमिशन हो जाता है या फिर वो रिसर्च में चले जाते हैं मास्टर्स और PhD करके रिसर्च की तरफ हो जाते हैं या फिर टीचिंग में भी जा सकते हैं. You know, when you do research, obviously you're working with some big hospitals, something like this? Hospitals or universities. उन लोग के साथ है? जी. So obviously then you got a big support for them. जो भी आप research कुछ भी करते हो, so funding वगैरह तो सारा कुछ वो तो hospital करती होगी ना? जी. किस तरह की आपको because you are researching at the moment, there are other researchers as well. You all sit together try to find out कि उसके causes treatment क्या है. जी. तो
what happens जब भी if you do find out what happens to the actually person जो भी treatment आपने ढूंढ लिया कोई उसका रास्ता ढूंढ लिया I'm just trying to find out कि what benefit you get as a scientist for bringing that treatment out. आई थिंक रिकग्निशन उसकी मिलती है कि हम रिसर्च पेपर जब सबमिट कराते हैं तो उसके बाद पीयर रिव्यू होता है एंड अगर वो अप्रूव हो जाता है वो साइंटिफिक जर्नल्स में जाता है और उससे फिर ऐड किया जाता है मॉड्यूल्स वगैरह में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनकी रिसर्च में या पढ़ाई में हेल्प करते हैं ताकि डॉक्टर्स फिर इट गोज़ टू मेडिकल स्कूल्स एज वेल जहाँ पर डॉक्टर्स भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं कि अच्छा लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ने रिसर्च की है और किसी भी डिज़ीज़ के बारे में और उसके लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कोविड को भी ले लें तो उसके ऊपर भी रिसर्च हुई है तो फिर ही वो वैक्सीन बनी है और व्हेन यू सेंड इट आउट टू द डॉक्टर्स देन दे कैन differentiate between normal flu and COVID. So I think it's basically educating and creating the awareness amongst the people. Biomedical scientist is a gateway. Then you can walk to any different field. Ke andar, Yes. This is open totally. It is, yes. Really? That is why I actually chose to be biomedical science so that I can choose to be. If I want to be a scientist, I'll be a scientist. कि अगर मेरा माइंड चेंज हो गया मैं उस टाइम पे जाकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो मैं डॉक्टर भी बन सकती हूँ Because you're almost there, no? Yes. Or like anything related to science I can do. जिस तरह मैंने कहा कि मैं initially scientific journalist बनना चाहती थी, but then I chose to stay in research. Again, journalist, scientist connected with the medical again. Yes. So basically वो report करते हैं scientific news के बारे में या anything that is discovered in the field of science, new researches. तो साइंटिफिक जर्नलिस्ट बेसिकली वो करते हैं. जो भी लोग देख रहे हैं अभी obviously I don't know how many people because जैसे मैंने बोला ये नई बीमारी तो नहीं है, it's something people are beginning to know that उसके awareness हो रही है अभी. But there might be a lot of people like yourself who are suffering at the moment in quiet because they probably only have a mother to talk to. क्योंकि चले ऐसी बात जैसे आपने बोला अगर मैं बात बोलूँ वेस्टर्न कंट्री के भी स्पेशली एशियन फैमिली के अंदर कोई भी एशियन फैमिली हो जो लड़की बड़ी ओपनली विद द मेल भाई हो जहाँ उसका पेरेंट्स हो नहीं बात करते वो लेडी तक ही करती है. फिर आगे माँ किस तरह की स्ट्रॉन्ग है वो हाउ मच डज शी टेक इट फर्दर ताकि उसके बेटी का इलाज हो सके. तो इस तरह से आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? आई लाइक टू गिव सम काइंड ऑफ एडवाइस टू द पीपल वाचिंग यू. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज some people suffer in silence for years. And by the time पहली stage पे होता है दूसरी पे maybe it's going to the fourth stage. There are 4 stages in this. Yes. तो मेरी एडवाइस यही होगी कि अगर आपकी बॉडी के साथ कुछ भी अनयूजुअल आपको फील होता है कि पेन हो रही है या आप अपने डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते तो उसके लिए आप सपोर्ट सीख करें. आप अगर स्कूल में हैं तो अपने किसी टीचर या नर्स से डिस्कस करें और वो आपको गाइड कर देंगे. बहुत ज़्यादा सपोर्ट अवेलेबल है. आपको सिर्फ जाकर वो राइट सपोर्ट फाइंड आउट करनी है. इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है लेकिन बग़ैर डॉक्टर की एडवाइस के कोई भी ट्रीटमेंट्स मत यूज़ करें क्योंकि वो डेट्रीमेंटल हो सकते हैं. हर किसी की फैमिली हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री डिफरेंट होती है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेडिकल और प्रोफेशनल हेल्प लें. साइलेंस में सफ़र करने से और भी बहुत ज़्यादा मसले होते हैं कि डिज़ीज़ स्टेज्ड कर जाती है जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट होता है. अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए डायग्नोज हो जाए तो ट्रीटमेंट इजी और लेस इन्वेजिव होता है. लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा वेट करेंगे तो इट कैन स्टार्ट अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ एज वेल विच इज़ अ ह्यूज कंसर्न. तो आई वुड सजेस्ट दैट seek help and talk about it. And I think there is this thing that says we need to end the stigma around female reproductive health. एक बात चला मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने बोला कि खुद डॉक्टर बनने की ना करो आदत क्योंकि हमेशा ऑलवेज टेक अ प्रोफेशनल एडवाइस. क्योंकि मेडिकल कोई भी चीज़ होती है ना यू कांट यूज योरसेल्फ एज अ पिगी बैंक. मैं उसको ट्राई करता हूँ ये करता हूँ जो भी लेना जो भी करना ऑलवेज रिसर्च करो जैसे साइना ने बोला and always take a professional advice for the medical team kolo. Yes, because it can cause more damage if you start to self-experiment or self-medicate. अच्छा सर अभी थोड़ा बहुत I'm now going to talk about you. I'm going to talk about this disease as well.
लास्ट रिजोर्ट क्या है? इट्स अ सर्जरी ना इसका? एक्सिजन सर्जरी होती है जिसमें बेसिकली एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट होते हैं जो ये सर्जरी परफॉर्म करके जितने भी टिश्यूज़ होते हैं और स्कार्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं. पर अगैन देयर इज़ नो गारंटी दैट देयर वुड बी नो रीग्रोथ because it can come back. It depends on how good the surgeon is and how far or badly it has infiltrated in your body. Because sometimes surgeons cannot touch certain organs because it will damage them for good. Sometimes the organs have to be removed as well. सर आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है अभी? व्हाट आर योर प्लान्स? व्हाट यू हेडिंग फॉर नाउ? बिकॉज ऑब्वियसली पहले तो आप रिसर्च कर रहे हैं जी. एंड सबसे बड़ी बात हो गई बिकॉज कोई भी साइंटिस्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उन लोगों के माइंड में होता है कि मैंने इसका इलाज निकालना है एंड यू विल बी द वेरी फर्स्ट वन टू ब्रिंग इट आउट बिकॉज दिस इज समथिंग really really great कि इंसान को होता है कि यार मैंने उस इंसान का नाम will go into the books whatever. Yes. What are your plans? What you're really heading for? Are you going to stick to this कि यही जगह पे आप उसको concentrate करेंगे? You want to find out उसकी treatment क्या है, किस तरह उसका इलाज हो सकता है कि there's another link you can divert to another direction. So I think when you are researching something, it's a long road, it's a long journey. वही ना. तो my goal at this point of my life is कि मैं इसका कोई ट्रीटमेंट निकालूं, कोई इलाज निकालूं या कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से लोगों की लाइफ थोड़ी आसान हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ ही अच्छी हो जाए ताकि एटलीस्ट वो डेली स्ट्रगल्स जो हैं जहाँ पर सिंपल ग्लास पानी का उठा कर नहीं पिया जाता क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा और एसोसिएटेड कंडीशंस भी हो जाती हैं. तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके साथ साथ मैं एक एक्टिविस्ट भी हूँ फॉर एंडोमेट्रियोसिस एंड आई वांट टू क्रिएट अवेयरनेस एंड आई वांट टू टॉक अबाउट इट एज ओपनली एज आई कैन ताकि लोग एम्बैरस होना बंद हो जाएं क्योंकि इट्स अ नेचुरल. That is the biggest thing actually. Yes, it's a natural thing, something that nature has given us. तो हम उसको deny नहीं कर सकते. तो just because it's a female problem, it's a women's health problem, we cannot ignore it. So I want to create awareness ताकि बात अगर किसी लड़की को कोई मसला है तो वो सिर्फ इस शर्म में ना चुप करके बैठी रहे कि मैं बात नहीं कर सकती, ये मेरे पीरियड से रिलेटेड है. तो आई वांट देम टू गो आउट ओपनली एंड टॉक अबाउट इट टू एनीवन दे वांट टू एंड नॉट बी अफ्रेड ऑफ इट. So Sana, basically you are a scientist, you are a researcher. जी. Scientist, researcher, but you're not, don't take me wrong, but you're not qualified to treat anybody, is it? No, I'm not. हाँ ना? No. लेकिन advice दे सकते हो? No, I would not give. You wouldn't even do that. I won't do that because that has to go through the professionals. Yes, that has to go through a doctor. This is the difference being a professional, being a scientist, as a researcher. Yes. So, like, if you're a doctor, medically qualified doctor with MBBS, then you can give a diagnosis and you can tell that you can take this medication or you can do this treatment. But I am not qualified to do that. But this is very important कि आप यहाँ पे बैठे हो, there are millions of people watching you, कि at least you show them the guiding them कि क्या करना चाहिए. आपने बोला बहुत importantly कि seek a professional advice. This is the first thing you should knock at the door. Yes. So I think the thing with doctors is that you need to keep pushing. Sometimes जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि औरतों की बीमारियों को वो ऐसे समझते हैं कि exaggerate कर रहे हैं. अगर आपको पेन है, अगर आपकी पेन सिंपल मेडिकेशन से नहीं ख़त्म हो रही, आप उसको पुश करते रहो कि नहीं मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे डायग्नोसिस चाहिए. एंड अगर आप खुद से रिसर्च करो, रीड अप आउट करो इस पूरी कंडीशन के बारे में एंड देन वंस यू गो टू द डॉक्टर इन्फॉर्म्ड यू वुड नो दैट वो सही ट्रैक पे जा रहे हैं या आपको कुछ और, या आप अगर उनसे पूछ भी लो कि आप मुझे ये ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये क्यों नहीं दे रहे, तो दे विल रियलाइज दैट यू नो व्हाट यू आर बीइंग ट्रीटेड फॉर. सो दे विल टेक यू सीरियसली बिकॉज अदरवाइज कई बार ऐसे होता है कि हमें पता ही नहीं होता हमें ट्रीटमेंट किस चीज़ का मिल रहा है और वो सही भी है हमारे लिए या नहीं. क्योंकि बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, हमारी बॉडी बहुत डिफरेंटली रिएक्ट करती है, हर किसी की बॉडी डिफरेंट है. आपके ऊपर एक मेडिकेशन काम करेगी, मेरे ऊपर नहीं करेगी. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप you make a note. I would suggest to people that अगर आपको ये कंडीशन है या आपको कोई भी menstrual health issue है तो आप डायरी बनाना शुरू करें अपने day 1 पीरियड से लेकर, और वो डायरी अपने डॉक्टर के पास लेकर जाएं and that would be very very helpful. पता है अगर आपको whenever you go to the doctor professional, seeking advice from the professional,
अगर आप उसको सवाल जवाब नहीं करेंगे तो हाउ कैन दे ट्रीट यू, गो टू टेल देम ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे होता है, लाइक यू सेड मेक ए डायरी, जी तो डॉक्टर को पता लगे कि उसका किस तरह होता है, उसके मुताबिक दे कैन डायग्नोज ना फिर। जी। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार लोग जब जाते हैं कि मुझे यहाँ पर पेट में दर्द है, तो इनिशियली मेरा भी जब मेरा फर्स्ट सर्जरी के बाद उन्होंने गायनेकोलॉजी ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया था कि अब आपका एंडोमेट्रियोसिस क्योर हो गया, तो आपको पेट की कोई बीमारी है, तो उन्होंने मुझे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास भेज दिया था। लेकिन मुझे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की कोई इशू नहीं है। तो जब मैंने रिसर्च की उसके बाद मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, एंड आई रियलाइज दैट यू नो इट कैन कीप कमिंग बैक or it might not have been removed. So then I pushed for more treatment, and that took time. It's not like कि अगर आप आज डॉक्टर के पास जाएंगे और आपको फॉरेन ट्रीटमेंट मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको पुश करना पड़ता है। Is this hereditary? No, there are no links found कि ये जेनेटिकल या हेरिडिटरी है अभी तक, क्योंकि रिसर्च बहुत कम है। ये कहा जा सकता है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को है कोई भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू लाइक फाइब्रोइड्स और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, पर इसका कुछ एविडेंस बेस्ड रिसर्च अभी तक आई नहीं है, क्योंकि सैम्पल इतना यू नो द टेस्ट सैम्पल इज़ नॉट दैट बिग फॉर नाउ। Sana, let's talk something about you again. देखो मैं हमेशा कहता हूँ मेरे शो के अंदर, एवरी टाइम आई टेल पीपल, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਕਾਲ, ਆਮ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫॉर what they done their life, they what they have achieved in their life। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, youngsters, if you want to follow the profession, this is something not very openly talked about, this is something not new, but awareness नहीं है, at least watch the channel, then you know कि where you can get help, these kind of things। चलो, how do your family feel about it now? You know, देखो आपने कहाँ से कहाँ पहुँचे हो, you wanted to be a journalist, then again linked with the science के साथ, अभी you are the bio medical scientist, it's a very very big achievement। Okay, दो जो आप औरत आप कह सकते हैं कि औरतों तो बहाना मारती, मैं नहीं कह सकता हूँ, तो मेरे को तो गाली पड़ेगी। You know, this is something I will be very careful। अच्छा कि आपने बोला, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन औरत बोले जो आदमी, लेकिन औरत आदमी में हमेशा होता है एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, इन्हों की तो आदत है, ये तो ऐसे करते रहते हैं, इन्हों को तो बहाना ऐसे लग जाता है, यू नो, बिकॉज दे टेक इट, आई डोंट नो व्हाट दे ट्राइंग टू गिव देम कॉन्फिडेंस कि कुछ नहीं हुआ, कि वरना उसको डाउन करते हैं कि कुछ नहीं, चुप करके बैठ जाए। जी, लेकिन देयर इज समथिंग यू नीड टू टॉक अबाउट इट ना। यस, तो इनिशियली मेरी अम्मी को इसका कुछ लाइक उनको पता नहीं था, और यस उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं था, और मुझे थोड़ा टाइम लगा उनको एक्सप्लेन करने के लिए। और एक्सटेंडेड फैमिली अभी भी थोड़ा बहुत इसी तरह करती हैं कि ये अच्छा अब तो ठीक हो जाना चाहिए, अब तो कोई मसला नहीं है। तो जब मैं कभी कभी लोगों से बात करती हूँ, तो मैं जब मुझसे पूछते हैं कि कैसी तबीयत है, तो मैं देखती हूँ कि मेरे ऑडियंस कौन है। अगर तो वो मेरी बात समझेंगे तो मैं बताऊँगी एक्चुअली मेरी तबीयत कैसी है, वरना मैं बस ये कह देती हूँ कि मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं, और ताकि मैं ज़्यादा मुझे, क्योंकि इट अफेक्ट्स माई मेंटल हेल्थ आफ्टर अ वाइल अगर वो इस टाइप के इनसेंसिटिव क्वेश्चंस करते हैं। तो सर, वेस्टर्न कंट्री के अंदर मुझे लगता नहीं कि इतनी प्रॉब्लम होनी चाहिए, दो दिस इज़ लाइक it's believed to be a sensitive subject to talk about. Do the men indulge in this as well? Do they contribute to your talk, to your इससे बैठ के बातें हो सकती है कि नहीं होती है? मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, और मैं बहुत ओपनली बात करती हूँ। कई बार आई थिंक बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत हेजिटेट किया है। हेजिटेट किया ना? बहुत कम हैं, पर क्योंकि अब आई थिंक चेंज हो रहा है टाइम। आई थिंक अगर मैं यही बातें 90s में कर रही होती तो प्रॉबेबली कोई मुझसे बात ना करता इस बारे में, पर क्योंकि अब टाइम चेंज हो रहा है और सोशल मीडिया से इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, तो आई थिंक it's changing and people want to be aware, so debates होती हैं, talks होती हैं, and I receive a lot of sympathy and empathy from people as well. चलो अभी बात से बात चल रही है। There must be a lot of people in your life, relatives हो गए, यार दोस्त हो गए, फैमिली होगी, आज आप चैनल पे बैठे हो, you know, because you can see yourself, because आपने इतना हार्ड वर्क किया,
you achieved that degree scientist की, अभी you're still doing research वगैरह, there must be a lot of people you want to thank them Yes. कि उन्हों की वजह से उन्होंने आपको support किया, इसकी वजह से आप जहाँ पे हो उसकी वजह से हो. There must be a lot of people. Yes. Is there anybody you want to thank? Look at the camera, please. You can thank them as well, and you know. Yes. Yeah. I'm here because of Mr. Ashok today. He's from British Army and he introduced me to Mr. Pal, and I think because of वो him. तो हमेशा करते हैं. He is my backbone. Honestly, Ashok जी ना, Ashok Chauhan is so wonderful man. एक दफा कॉल करूँ, he gets wonderful people like yourself. And पता जब भी he picks up the guest, उन्हों को पता कि मुझे किस तरह के गेस्ट चाहिए ताकि लोगों को फायदा हो सके. जी. You are here today to inspire yourself and inspire the people sitting at home. Exactly, yes. किसी ना किसी का घर पे बैठ के भला होगा. मे बी आज तक जो भी प्रोग्राम देख रहे उसको प्रॉब्लम है, लेकिन उसके दिमाग में नहीं हो सकती कि उसको ये बीमारी हो जी. सकती है. You know, somebody एक शो देखने से किसी की जिंदगी सुधर जाएगी तो कितनी आपको दुआ लगेगी. जी बिल्कुल. और Anyway, I think कोई दूसरे और कौन है आपको I कुछ? think my mom, my family would be like the people who actually supported me throughout, and they were there forever, stood behind me, and my partner and my friends basically, who were always there for me. Very good. अच्छा कि आपने ऐसे बोल दिया कि दफ़ा होता है कि आप एक दो नाम भूल जाएंगे, तो जिन्हों का नाम नहीं था वो माफ़ी मांग लो उनकी. तो वो पूरा जेनेरिक जो मुझे अपने फ्रेंड्स समझते हैं, तो it's a thank you to all of them. नहीं, हमारी तरफ से सना हम खुदा कि हम को प्रे करते हैं कि यू नो हमारे एशियन लड़के जो भी यंगस्टर्स है ना, we living in the western countries, we need to move on. We need to move into the professional fields. मेडिकल टीम होगी, पॉलिटिक्स होगी, ब्रिटिश फोर्सेस होगी. जिस कंट्री पे भी रहते हो ना, वी रियली नीड टू फील कि यू आर पार्ट ऑफ दैट कंट्री, एंड यू नीड टू रियली फील कि मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं ये मुल्क की किस तरह मैं सेवा कर सकता हूँ. So I think whatever जो भी आप कर रहे हैं प्रोफेशनली या एजुकेशन में, आपको पूरी लगन के साथ उसको करना चाहिए, and then you could just go and do whatever your heart says, whether you want to be a scientist, a doctor, join the forces, because again what my dad used to say कि अगर आप अपने दिल से नहीं करोगे तो आप कुछ भी काम अच्छा नहीं कर सकोगे, तो वो पूरे दिल से और पूरी ईमानदारी से करना चाहिए. लगन से बिल्कुल पक्का, डेफिनेटली. यू नो दिस यही तो बात होती है कि जब भी लॉट ऑफ टाइम्स क्योंकि एक फैमिली से इतना प्रेशर होता है ना कि क्योंकि बाप होता है कि मैं चाहता हूँ मेरे बेटा या मेरी बेटी ये बने, और हमारे में बच्चों पे इतनी हिम्मत नहीं होती है कि बाप के सामने खड़ा होकर कह सके कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ. तो यू नो एक तो रिस्पेक्ट होती है, एक हमको हिम्मत नहीं होती कि हम ओपनली बात कर सके. तो इसीलिए मैं ये शो करता हूँ. जो बच्चे बड़ी यंग के अंदर फोकस हो जाते हैं ना लाइफ के अंदर के दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. सम पीपल कीप 2 or 3 ऑप्शन रखना ठीक आइडिया कि इट्स अ रॉन्ग आइडिया. आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया बिकॉज प्लान ए कैन ऑलवेज कैन फेल एज वेल. तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो, एंड बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये तो कर सकता हूँ, लेकिन आपको पूरे फुल फोर्स से प्लान ए की तरफ काम करना चाहिए. दैट्स व्हाट यू रियली वांट. आपने मेरी जुबान मेरे से दिल से वो बात ले ली क्योंकि जब भी तो आप ऑप्शन रखते हो ना, तो आपको ऑप्शन होती है, तो आप मे भी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे. आप देखते हो यार ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं इस तरफ चले जाता हूँ. तो वो 2-3 साल वहाँ पे खड़ा कर दिए, फिर यहाँ पे चले, वहाँ देने लगे. तो अभी चलो मैं आपको पूछता हूँ, यू वांटेड टू बी जर्नलिस्ट साइंटिस्ट, आपकी पहली चॉइस थी वो जी. अभी अपने बायोमेडिकल साइंटिस्ट बने हो, विच इज अ सlightly डिफरेंट लाइन बट समथिंग साइंस के अंदर ही है. डू यू रिग्रेट एनीथिंग एट ऑल और यू थिंक? आई एक्चुअली डोंट रिग्रेट एनीथिंग, क्योंकि मैं अभी भी चाहूँ तो जर्नलिस्ट मैं किसी भी टाइम पे बन सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा बैकग्राउंड है, और मुझे बेसिकली एक डिप्लोमा करना होगा जर्नलिज्म में, एंड आई कैन एक्चुअली बिकम अ साइंटिफिक जर्नलिस्ट. बट आई थिंक मोर देन जर्नलिज्म आई एम क्वाइट हैप्पी एंड कंटेंटेड इन व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि अगर मैं साइंटिफिक जर्नलिस्ट होती तो प्रॉबली मुझे लोगों की रिसर्च के लिए वेट करना पड़ता, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. पर अभी मैं खुद रिसर्च कर रही हूँ, और जब वो पब्लिश होगी तो वो लोगों तक खुद ही पहुँच जाएगी. तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम कंटेंटेड इन, बिकॉज इट इज़ सर्विंग द ह्यूमैनिटी इन more ways than I had ever imagined. जो हमारे माँ बाप ने किए हम शायद वो नहीं कर पाते. किस तरह मैं कह रहा हूँ
کیونکہ آپ بڑے لکی تھے. آپ نے شروعات میں بولا تھا کہ آپ کے فادر نے آپ کو فریڈم دی تھی, پیرنٹس نے, کہ آپ جو وہ چاہتے وہ کرو آپ. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کو یہ فریڈم تھی, مجھے اتنا وہ احساس ہوا کہ میں کر سکتی ہوں. آپ کو are you going to follow your father's footstep or you're going to be very strict with the children کہ میں یہ بنی آپ یہی بنو؟ Well, I am child free by choice, so I don't think that I am going to ever have kids, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں I can take the responsibility, but I think with my nieces and nephews I will be I'm quite lenient. میری بہن ہے مجھ سے 15 years چھوٹی ہے, so obviously she's like a child to me and I tell her to follow her dreams. I actually follow my father. So like she wants to become a model, so like تھوڑا بہت restriction ہوتی ہے کہ you know یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, so I tell her to follow her dreams. چلا thank you so much. امید رکھتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. Thank you so much. اور دوسری امید رکھتا ہوں کہ کسی نہ کسی کا بات سن کے بھلا ہوگا. At least somebody will be aware کہ ہاں مجھے یہ ہے, تو probably go and see specialist. تو امید رکھتا ہوں اور پرے کرتا ہوں کہ whatever you want to do be successful, اور امید رکھتا ہوں واپس آگے. Thank you so much. جب علاج ملے گا تو آنا. جی definitely. Anyway, thank you so much. امید رکھتا ہوں تمہیں شو اچھا لگے ہوگا. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ادھر انٹلیکچوئل گیسٹ لے کے آواں تاکہ تھوڑا فائدہ ہو سکے. نیکسٹ ویک سیم ٹائم پھر تھوڑا ملاقات ہوگی. تب تک رب رکھا. گڈ بائی کرے. ست شری اکال جی. Thank you.